Good morning, Mrs. Divya. How are you? I am doing absolutely great. Thank you for coming on this podcast and welcome to Silent Warriors. So today we are going to discuss about your life and about myths of life of army lives. So I would request you to please introduce yourself first. I am Divya Rai, married to an olive green, and we have been married for 12 years now. और हमारा 9 साल का एक बेटा है और आई एम वर्किंग विथ APS and I am also hosting shows. Oh I wow. am a professional MC now. I am hosting pageants. So uh, that's how the life is. Wow, nice to hear this that you're a host also. So I think I'm going to learn something from you today. Absolutely. So, were you working before marriage or you just started after marriage? I was working before as well and I was working after marriage also. मैंने कभी काम रोका नहीं. Okay. ओनली थिंग कि मैंने अपने आप को कहीं स्टॉप नहीं होने दिया. आई वॉज वर्किंग थ्रू आउट माई लाइफ. शादी होने के बाद भी नो मैटर कहाँ पोस्टेड थे कैसे पोस्टेड थे एंड आई थिंक दैट इज़ वन थिंग विच कीप मी गोइंग टिल डेट. Nice, nice. That's an inspiration. तो क्या आपको changes feel हुए? Were you from civil background or army background? I am from a defense background. I am a naval eye. So, yes, Navy and Army are little bit different. So, there I was a daughter, so I have least of responsibility. Here I'm a wife, so I have more of responsibilities. Yeah, correct. तो क्या differences, main differences क्या आपको लगे नेवी और आर्मी में? Uh, See, both are फौज, दोनों ही फौज हैं, दोनों में ही सेपरेशंस हैं. बट यस आई वुड से कि आर्मी में सेपरेशंस ज़्यादा हैं and navy में yes, people go on sale. They go on sale for 6 months or a year. They go on abroad. लेडीज़ वहाँ पे भी अकेले रहती हैं. वहाँ पे भी नेवल वाइफ्स एसोसिएशन चलता है एंड विच कीप अस कनेक्टेड. एंड सेम आर्मी में भी वही चीज़ है कि जैसे रिमोट पोस्टिंग्स आ रही हैं. इफ़ यू आर लकी इनफ यू जॉइन योर हस्बैंड एंड इफ नॉट तो आप पीछे रह के यू आर सपोर्टिंग योर हस्बैंड. Yeah. And how did you meet your husband? Oh, online shopping, I would say. So we Really? put on a matrimonial. Oh, online shopping, yeah. Shopping for a groom and a bride. Nice, nice. Okay, on matrimonial site you Yes, have met. yes, And yes. how was the courtship period? And We didn't get a courtship period, I would say, oh, yes. So my husband was posted in peace, and the only thing he was आफ्टर मी कि मुझे ना फील्ड जाने से पहले शादी करनी है. फील्ड जाने से पहले शादी करनी है सो दैट आई कैन अकम्पनी यू. दैट वाज अ मॉड फील्ड. yeah, yeah, सो मॉडिफाइड फील्ड है कि यार विल गेट अ गुड टाइम. सारा कोर्टशिप पीरियड हमने शादी के बाद ही किया है. yeah. Before meeting him, आपको पता था कि आर्मी लाइफ कैसी होती है? सी आई हैड as such I am from a defense background, so I had the outline of the army life, but to be in, It's different. it's absolutely different. आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं फ्रॉम डे वन एंड करेज एंड स्ट्रेंथ यू नीड फ्रॉम डे वन इज एब्सोल्युटली डिफरेंट. Especially when you're married to an infantry officer, story is totally different. So I was somewhere prepared also कि married to an infantry officer एंड आर्मी पर्सनल है. कहीं ना कहीं इसको इनको फ्रंट पे जाना ही होगा. सो आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड इट वॉज ऑल्सो माई डिसीजन whether I'm ready for it or not. So I made a right decision. Yes, I'm ready for it. I can do it. ओके नाइस. व्हाट डू यू थिंक किस तरह के सैक्रिफाइसेस एक आर्मी वाइफ को करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा हो तो प्लीज शेयर विद अस. I think most of us have seen it and been through it.
was the phase of pregnancy and the phase of delivery where the husband is not there. So most of us, even my friends, and if I speak to my senior lot or a junior lot, they say the delivery wale din husband was not there. So that is one my own experience, I would say कि वो एक दिन होता है when we expect our husband to be nearby us. No, we are going through the toughest phase of the life, you know, delivering a life, and your family is there, your brother, your mother, everybody is there, but still your eyes look for your husband. आपका husband कहाँ है? सो वो एक गैप होता है जो फिल नहीं हो पाता है, एंड यस हम उसके लिए हस्बैंड के पीछे भी पड़े रहते हैं कि इफ आई डू द नेक्स्ट डिलीवरी मेक श्योर दैट यू हैव प्लान योर लीव. सो एक वो फेज सबके लिए रहता है, एंड उस टाइम आपके लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन रहती है, बट ट्रस्ट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उस बात को सोच के हंसते हो. यू रियली चेरिश दोज मोमेंट, यू एंजॉय दोज मोमेंट जब आप हस्बैंड से बैठ के बात करते हो ना कि यू वर नॉट देयर ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी. तो दैट इज वन आई बिलीव सबके साथ हुआ होगा वो. या करेक्ट. आई थिंक वो 90% आर्मी वाइफ्स के साथ ये सीन है कि एब्सोल्युटली. जब बेबी हुआ है तब हस्बैंड पास में नहीं है. बिल्कुल एंड दैट्स अ पेनफुल थिंग आल्सो. एक एक स्कार लाइफ टाइम का आ जाता है ना कि ही yes वाज नॉट देयर विद yes मी. yes but we should, you know, try to understand the other side of the story. He is a father. He really wanted to be there, क्या. but because of the commitments and because of the official things नहीं आ पा रहे हैं. तो फॉर हिम, यू नो, वो अगेन आई थिंक मस्ट बी ट्रॉमा फॉर हस्बैंड एज वेल या कि यार मैं अपने ही वाइफ, अपने ही बर्थ ऑफ चाइल्ड के टाइम आई वॉज इन देयर, दो आई वॉन्टेड, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट ही वॉज नॉट देयर. सो आई बिलीव उनको भी कहीं ना कहीं गिल्ट रहता होगा, एंड दे हाँ आर उनको इक्वली बहुत. ट्रॉमाटाइज्ड, बट दे डोंट एक्सप्रेस लाइक हाउ वी डू कि आप नहीं थे प्रेगनेंसी के टाइम, आप नहीं थे, ऑप्शन नहीं कर पाते हैं. तो जब पेरेंटिंग का टाइम आता है Hmm. तब वर यू अलोन और ही वाज अवेलेबल विद यू. I was alone till 1.5 year, एंड मेरा तो बेबी बॉर्न हुआ है और हस्बैंड 6 महीने बाद आए हैं. तो उन्होंने वो जो लैब बेबी होता है वो तो देखा ही नहीं है. उन्होंने देखा है कि बेबी अब क्रॉल करना शुरू हो गया है. अच्छा बच्चा ऐसे ही होता है क्या, वो पैदा होते ही क्रॉल करता है? सो दैट वन थिंग. एंड अकेले पेरेंटिंग मोस्ट ऑफ द मदर्स करते हैं. आई थिंक इसके लिए सबको डे वन से रेडी हो जाना चाहिए कि इफ़ यू आर मैरिंग अ फौजी, आपको मेंटली तैयार होना चाहिए कि बेटा पेरेंटिंग हमने ही करनी है, स्कूलिंग हमने ही करवानी है. एंड आई टेल यू, जो अ, ये जो काम है, ये जो हम बच्चे की ग्रूमिंग कर रहे हैं, यू हैव टू डू टिल द टाइम ही इज इन कॉलेज, या बिकॉज फादर विल नॉट बी अवेलेबल दैट टाइम ऑल्सो. सो इट इज़ नॉट जस्ट कि हम टॉडलर था या बच्चा चलने लगा तब तक हमने ग्रूमिंग कर टिल दी है. हिज टीनेज. टिल ही इज, यू नो, ही हैज एक्वायर्ड अ जॉब. आई थिंक मदर का रोल तब तक चलता ही रहता है. फादर्स आर अवे मोस्ट ऑफ द टाइम. How do postings affect you emotionally? Oh, a very difficult question. I believe it does affect all of us. All of us. If it is a good posting, we are on cloud nine. We Yeah. are very happy. Wow, new posting, नया घर, ऐसा डेकोर करेंगे, ऐसे साड़ी लेंगे, ऐसे पार्टीज करेंगे. एंड इफ इट इज फील्ड, आपका मोरल एकदम डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस टूट जाता है. बट आर्मी वाइफ की यही एक खासियत है कि वी पिक अप आवर पीसेस एंड वी स्टैंड with lot of strength and courage, and we are ready to face that also. This shall pass. कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं रिलेटेड टू पोस्टिंग जिसने आपको बहुत इफेक्ट किया हो. Uh, yes, when I was in family way, so we were expecting a posting. We were already in a modified field. So after modified field, peace field, it goes like that. So I thought okay, we'll be going to somewhere peace. Now my husband comes and say कि you know what, मेरी RR posting आ गई है.
And that moment, I was just scattered with lots of thoughts, and what I am going to do next. मैं अभी सॉर्ट ऑफ न्यूली वेड ही हूँ, एंड यू आर गोइंग टू फील नाउ मेरा बेबी, उसको कौन डिलीवर कराएगा, हु विल टेक केयर ऑफ हिम, है ना? एंड मेरे को वो मोमेंट में समझ नहीं आया करते क्या है एज अ न्यूली वेड ना। आपके हस्बैंड फील जा रहे हैं तो व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई एम ऑन अ फैमिली वे, हु विल टेक केयर ऑफ मी हियर आफ्टर? सो दैट मोमेंट हैड मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला नेवर गिव मी सच सच न्यूज ईयर आफ्टर, है ना? एंड आरआर अगेन एक टेंस पोस्टिंग रहती है, और जब आप फैमिली वे में होते हो वैसे ही आप बहुत क्रैंकी रहते हो, बहुत बहुत सारे आपके हार्मोनल चेंजेस रहते हैं. सो आई हैड स्लीपलेस नाइट्स knowing that my husband is in RR. Again, I'm on a family base, sleepless night. So वो phase I believe सबके साथ हुआ है, and I pray किसी के साथ ना हो. करेक्ट. तो जो ये हमारे जैसे जवान्स की वाइफ्स होती हैं, ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं? I tell you, Bhavna, during the interaction with the ladies, they are very strong. I think they are Very, stronger than us. absolutely, they are stronger than us. आई डोंट नो किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मतलब उनको अगर पता चलता है कि मैडम अभी हस्बैंड का पोस्टिंग आ गया है, मैं तो अपने घर जाऊंगी, मुझे अपने बच्चे पढ़ाने हैं। दे आर सो क्लियर विद देयर परसेप्शन, सो क्लियर विद देयर फ्यूचर आइडियाज, एंड कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं, कोई परेशानी नहीं, और they are such an example. They motivate you like anything, I'm telling you. Yeah. Especially our senior GCU wives, now if you interact with them, Bhavna, they'll motivate you. वो अपनी स्टोरीज बताते हैं और उनको लगता है when they can survive with that, toughest situations, why can't we? Yeah, why can't we? Actual warriors, I think they are the actual warriors. They are absolutely. हम तो फिर भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं अपने हस्बैंड से कि आप ये करो, हमारे साथ पेरेंटिंग अच्छे से करो, बहुत चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, पर वो बिल्कुल समर्पित है. बिल्कुल. एंड वन थिंग, दे are living with a joint families. They are very much, dealing with the very nicely taking care, I would say, of the in-laws, their kids, supporting husbands, taking care of themselves also. मैंने कभी मेरे किसी जवान की लेडी को रोते हुए नहीं देखा, परेशान नहीं देखा. They are so prepared. So much. And I think credit goes to our jawans कि उन्होंने अपनी वाइफ को इतना प्रिपेयर करके रखा है एंड सपोर्ट करके रखा है. It's a lesson for all of us. Yeah, it is. It's a learning. So is there any decision in your life which you have made alone due to the commitments of your husband? Many decisions. Many decisions. बेटे का नाम रखना है सबसे बड़ा डिसीजन. ओके. हस्बैंड फील्ड में है और फोन के थ्रू कनेक्शन नहीं हो पा रहा है. ही इज इन कश्मीर एंड फोन्स बंद हैं 12-15 दिन के लिए. बच्चा डिलीवर हो गया है, आई हैव टू मेक अ बर्थ सर्टिफिकेट. सो आई एम दिव्या, तो आई वाज थिंकिंग बेटे का क्या नाम रखूं, सो आई नेम्ड हिम दिव्यांश. नाइस. दैट्स अ गुड आइडिया कि मदर वाज अवेलेबल तो मदर के नाम से ही कुछ नाम आ जाए. ये बहुत अच्छा है. थैंकफुली सर ने मैंने अपना नहीं रखा, हस्बैंड का रख दिया. So that was one of the toughest decision, and every day we take decisions, यार, है ना? घर में we as a lady, we have to take our parents, take care of our parents, our in-laws, है ना? हम उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं. our in-laws, they have given their son to the nation. So उनकी टेक केयर करना is the priority. उनकी happiness is the priority. Correct. If they are happy, our husband are happy, our husband are happy, eventually we are happy. So that is how the cycle and the life goes on. अच्छा, जैसे अभी क्या होता है पोस्टिंग्स का, अब ये तो नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ रीजन में आएगी या सिर्फ साउथ रीजन में आएगी. इट्स लाइक कहीं भी, ऑल ओवर इंडिया. तो जो कल्चर डिफरेंसेस होते हैं उसको आप कैसे मैनेज करते हो? Adaptability and take it as an adventure, I would say. Okay. ठीक है. So when I was not married, but my father have
explored the southern part of the India. Okay. Now uh, after marriage, I have been exploring the northern and the northern east part of the India. Okay. So I think my life is full of adventure. So if you ask यार ये चीज सबसे बढ़िया कहाँ मिलती है तो मैं बोल सकती हूँ झांसी में मिलती है. Go and visit, make a trip to झांसी. So I think आपको फौज इतना घुमा देती है, इतना एक्सपीरियंस दे देती है. एंड ट्रस्ट मी, पीपल इन इंडिया दे आर वेरी नाइस. एंड मेरे ख्याल से हम फौजी ही हैं जो हर स्टेट पे जाके लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं. और उनका कल्चर भी अडेप्ट कर लेते हैं. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. मतलब फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे वी आर फ्रॉम नॉर्थ, अब नॉर्थ में जो फेस्टिवल होते हैं वो साउथ में नहीं South होंगे या वो में नहीं नॉर्थ ईस्ट में नहीं होंगे, Absolutely. बट वहां जाकर हम उनके कल्चर को ही एंजॉय करना शुरू Enjoy कर कर देते लेते हैं. हैं. यस यस, उनके कल्चर, उनके कुजीन्स, उनका ट्रेडिशन, उनके कपड़े रादर, है ना, या आप पहनते हो एंड यू फ्लेक्स दोज या ट्रेडिशनल वेयर्स कि टुडे आई एम वेयरिंग दिस, टुडे आई एम वेयरिंग दैट. सो आई थिंक फौज हैज गिवन यू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर इंडिया. बट जैसे अब कुछ लोग होते हैं फूडी, Yes. लाइक मैं अपना बताती हूँ, आई लाइक स्ट्रीट फूड अ लॉट, हाँ. बट यहाँ जहाँ पर अभी हम हाँ, हैं, हाँ. वी डोंट गेट दैट गोलगप्पा, टिक्की, चाट, पापड़ी एंड वैसा वाला टेस्ट है हाँ. ना नॉर्थ हाँ. वाला. तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तो ये सब नहीं मिलता, नहीं तो है. आई वेट फॉर छुट्टी कि मैं कब हम्म. छुट्टी पे जाऊँ. मुझे कब? लगता है मेरे लिए ये भी एक सैक्रिफाइस ही है कि आई एम अपनी मैं टेस्ट को वो खत्म कर रही हूँ कि वेट वेट यस. वेट फिर अच्छा, हम कुछ. ये सैक्रिफाइस तो रहेंगे ही. एंड ऑल्सो आपको अगर गोलगप्पे खाने का, जैसे मैं आई शेयर माई एक्सपीरियंस. हाँ. सो वी वर इन नागालैंड, आवर यूनिट वाज इन नागालैंड. सो हमें किसी दिन गोलगप्पे खाने का मन होता था, किसी दिन चाट, किसी दिन टिक्की. सो हम क्या करते थे, लेडीज इटसेल्फ, सो वी यूज्ड टू ऑर्डर पैकेट ऑफ गोलगप्पा फ्रॉम Yeah. दीमापुर. तो वो पैकेट आ रहा है एंड ऑल लेडीज, ऑल ऑफ अस, तुम ना इसका स्टफिंग बना के लाना, तुम इसका पानी बना के लाना, तुम इसका टिक्की बना के लाना. एंड वी यूज्ड टू गैदर एट वन प्लेस एंड ईट एंड relish, and not just the food but the moments. Yeah. And me and my CEO's wife, we were together that time and we relished that moment till date. कि क्या गोलगप्पे बनाए थे यार, वो वाले गोलगप्पे ना आप दिल्ली में खा लो, मुंबई में खा लो, कलकत्ता में खा लो, बट जो हमने बनाए थे, that was something par. So yes, that is one way of And with these experiences only, I think एक आर्मी वाइफ एक अच्छी शेफ भी बन जाती है. absolutely. Chef, event manager, anchor, you name a job, radio jockey, you name a job, Yeah, an army we are officer wife everything. can do anything. Yeah, correct. We are all rounder, All rounders. and still we are silent warriors. अब वही जैसे आपने ये गोलगप्पे वाला एग्जाम्पल बताया, तो ऐसे ही कोई कुछ एक्सपीरियंस रहा हो कि आपके कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में एक आर्मी वाइफ ने ही आपको बहुत सपोर्ट किया हो और आपका हेल्प किया हो. Absolutely, absolutely. सी जब आप आर्मी में आते हो ना, आपको फ्रेंड्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना. इवन इफ यू से कि नहीं यार, मेरे तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, मेरे तो कॉलेज वाले फ्रेंड्स हैं, मेरे को फ्रेंड्स की क्या ज़रूरत है, यू रिक्वायर्ड अ फ्रेंड. अगर आप अपनी इश्यूज पोस्टिंग रिलेटेड या आई एम नॉट, माय हस्बैंड इज नॉट गिविंग मी प्रॉपर टाइम, किसी सिविलियन फ्रेंड से डिस्कस करोगे तो उसके सर के ऊपर से जाएगा. ना तो उसको समझ में आएगी, ना वो कोरिलेट कर पाएगी, ना वो आपको गाइडेंस दे पाएगी. बट इफ यू शेयर सच थिंग्स विद अ फ्रेंड हु इज सेलिंग ऑन अ सेम बोट, तो शी विल टेल, वो आपको सजेस्ट कम सिमिलर, यार मेरा भी हस्बैंड नहीं है, क्या करें यार, अच्छा तू भी दुखी है, अच्छा मैं भी दुखी हूँ, so let's be happy. Yeah. दुख cross and become happiness. Here also we are doing the same thing. है ना. तो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, माय husband got COVID. He was in Okay. Glacier and he got COVID positive. I was alone in SF. अभी कुछ चीजें ऐसी होती है आप अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकती. यू कैन टेल योर पेरेंट्स, है ना, आपके पेरेंट्स पैनिक हो जाएंगे. Yeah. इन लॉज को बोलोगे वो पैनिक Panic हो जाएंगे. सिस्टर इन लॉ को बोलोगे वो भी शील ऑल्सो गेट डिस्टर्ब इन अ मैरिटल लाइफ. सो आप ये किससे डिस्कस करोगे? आप अपनी जो SF में रहने वाली लेडी है या जो फ्रेंड है, आप उससे डिस्कस करोगे. एंड ट्रस्ट मी भावना, ladies are ready to listen you, ladies are ready to pamper you.
डोंट वरी, वी आर विथ यू। अरे पता है मेरे भी हस्बैंड को हुआ था। So, जब आप दूसरों की स्टोरी सुनते हो ना, आपको लगता है कि अच्छा दिस इज नॉर्मल, दिस इज हाउ इट इज, सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ, आई जस्ट शेयर इट टू माय फ्रेंड, एंड जिन जिन को पता चला, यू विल नॉट बिलीव, कम से कम 20 कॉल्स मेरे पास आ गए, ऑल यूनिट लेडीज, ऑल माय फ्रेंड्स फ्रॉम हियर एंड देयर, जिनको पता चला कि डोंट वरी यार, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, दिस इज टफ टाइम, यू स्टे स्ट्रांग। तुम स्ट्रांग नहीं हो तो हस्बैंड विल इवेंचुअली विल गेट affected. So like that the friendship, it helps. Yes, friendship रहती है, but you have to draw a line between the seniority and the juniority. But people are really good in army, Bhavna, I must say. Really good, really helpful. तो मिसेस दिव्या, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि जो हमारे फेटर्निटी में जो बच्चे होते हैं, मतलब इनको देख के लगता है कि कितनी जल्दी एनवायरनमेंट अडेप्ट कर लेते हैं, स्पेशली फ्रॉम द पोस्टिंग्स, कि इनका स्कूल भी चेंज हो रहा है, इनके फ्रेंड्स एकदम चेंज हो रहे हैं, कई बच्चे अपनी टीचर से बहुत, एज यू आर ऑल्सो अ टीचर, तो आपने ये फ्रीक्वेंट देखा होगा कि एपीएस में बच्चे बहुत जल्दी चले जाते हैं और न्यू एडमिशन्स आ जाते हैं, तो उन बच्चों का माइंडसेट कैसा रहता है? I believe it is, yes, it is tough for them to settle and make new friends in every station. But I think they are again, they adapt. Kids, they adapt things very fast and very frequently. Also, it's there in, it's there in blood also. या कि फौजी बच्चा हूँ, मुझे तो अडाप्ट करना मुझे ही तो है, फ्लेक्सिबल होना ही होना ही है, या So, and initially, even my child used to say, कि, Mama, I'm not staying in one school for a longer time. I have to, keep shifting and keep making friends. Then I've told, Mama is also making friends, no? So you can also make friends, and Papa is also making new friends. You can also make friends. And it's good thing, not everybody get chance to, make these many friends. Not everybody get chance to interact with, see, now you're in unnatural, so you can make friends, localize naturally boys. So like that, so it's also a part of mother, how mother, engross child and, make him understand that this is the part and you have to live with it. या तो व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ यू हैव हर्ड अबाउट आर्मी लाइफ? लोग जो बोलते हैं। लोग बोलते हैं इन अ स्लैंग, ये तो मैंने फौजी से सुना है कि फौजी फौज में और बीवी मौज में। तो नथिंग लाइक दैट। फौजी फौज में है तो बीवी भी इक्वली बिजी है, इक्वली अ पार्ट ऑफ फौज में ही है। या नो, शी इज नॉट वेयरिंग द रैंक्स, बट शी इज अ पार्ट ऑफ फौज, शी इज डूइंग ऑल हर ड्यूटीज, either entitled or not entitled, from morning to evening वो on duty ही है। apart from our personal life, we have many commitments towards our फौज life, Yes, yes, तो वो नहीं पता होता है लोगों yes, को, yes. है ना? Those are the things which we are not highlighting and we are not showing on media, या but those are the 70% of army. वो 70% काम जो हम पूरे दिन में करते हैं, and 30% is what glam people see in reels and all, and they judge you या for those 30%. हैव यू एवर फेल्ट सैड अबाउट एनीथिंग अबाउट आर्मी लाइफ? कुछ भी एक आपको लगता हो कि Most of the time, जैसे सैड पार्ट क्या होता है, tell you, आपकी पोस्टिंग आई है किसी जो लोकेशन पे, हाँ, अब यू आर नॉट हैप्पी कि आपकी उस अच्छी जगह पोस्टिंग आ गई है, यू आर सैड कि यहाँ से 3 साल खत्म हो जाएंगे फिर फील्ड आएगी, यू आर सैड बिकॉज ऑफ द फ्यूचर या थिंकिंग दैट, है ना? हाँ, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, 1 साल 2 साल 2.5 साल हो गए, अब 6 महीने बचे हैं, अब आप सैड होना शुरू हो जाते हो, यार अब पोस्टिंग कहाँ आएगी, और पोस्टिंग आने से पहले ही हमारी पैकिंग स्टार्ट हो जाती है start धीरे हो धीरे। हाँ, इट टेक्स मंथ्स, आई थिंक मेरे लिए तो यही हुआ कि मैं 2 महीने पहले ही अपना स्टफ पैक करना शुरू कर दिया कि अब तो जाने का टाइम आ रहा है। yes, yes. And again saddest part is कि आप जो एक घर आपको मिलता है ना, यू मेक क्या बोलते हैं उसको,
कब्र से महल जो आप इसे बनाते हो, Yeah, correct. एंड अगेन यू हैव टू लीव दैट महल और आपको कहीं और शिफ्ट करना पड़ता है. तो दोज मेमोरीज विद दैट हाउस, आपने उस घर में, दैट हाउस वाज लकी फॉर मी, मेरा बेबी बॉर्न हुआ या मैंने Hmm. कार खरीदी. सो यू लीव दोज मेमोरी एंड देन यू हैव टू शिफ्ट टू अदर हाउस. दैट इज वन सैड पार्ट आई सी. Hmm. When history remembers soldiers, right, that we all know कि एक जवान को, एक फौजी को इतिहास याद रखता है, क्या उसकी फैमिली को भी याद रखा जाता है जिन्होंने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किए होते हैं? यस, वी टेक केयर ऑफ आवर फैमिलीज, है ना. आई थिंक वो सिर्फ फौज में ही है कि एक मार्टियर की वाइफ को हम थ्रू आउट लाइफ टेक केयर करते हैं. वी गिव हर रिस्पेक्ट, है ना. ड्यूरिंग रीयूनियंस वी कॉल हर, हम्म. उनकी पूरी फैमिली को बुलाया जाता है. जो भी यूनिट से बनता है, यूनिट अपनी तरफ से, फौज अपनी तरफ से जितना भी वेलफेयर कर सकती है लेडी के लिए, बच्चों के लिए करती है. आई हैव सीन अ मार्टियर डॉटर who was about she was getting married, and उन्होंने एक इनविटेशन कार्ड भेजा यूनिट में, और आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ से 50 बंदे जाके खड़े हो गए कि बेटा हम इन केस ऑफ फादर हुआ है, हम हैं, आप चिंता मत करो, दिस इज द बताओ क्या ब्यूटी करना है. ऑफ आर्मी लाइफ, दिस इज द ब्यूटी ऑफ है ना, कि आपको. आप यू आर नॉट कनेक्टेड बाय ब्लड, यस, बट वो एक स्ट्रिंग है जो हमेशा जुड़ा रहेगा, एक रिश्ता एक हमेशा बन जाता है, हमेशा और वो आप निभाते भी हो दिल से. बिल्कुल दिस इज द बेस्ट पार्ट आई बिल्कुल. गेस. यू फील लाइक डूइंग, आप इग्नोरेंट उनकी तरफ हो ही नहीं सकते हो, इग्नोर किया ही नहीं जाता है. आपको लगता है दे आर स्टिल पार्ट ऑफ फैमिली. जो उस लेडी के साथ बीती है वो किसी और के साथ ना बीते. और हमारी तरफ से जो सपोर्ट होता है ना, फ्रॉम लेडीज, फ्रॉम आर्मी, फ्रॉम आर मेन, जो सपोर्ट होता है वी आर रेडी टू गिव, आंख बंद किए हुए, विदाउट एनी आस्किंग एनी क्वेश्चन. सो that is one blessing. Yeah. And any message to our future army wives? Oh, so future army wife के लिए एक ही मैसेज है. if you're ready for courage from day one, if you have strength, ठीक है, and if you think you can support your husband in any in and out, no matter what, then only get married to a Fauji. Yeah. And secondly, जो टाइम मिले, जहाँ टाइम मिले, just go, leave your job, leave everything. एक दिन 2 दिन पे मिल रहा है अपने हस्बैंड के साथ, फौजी के साथ, या छोटे से स्टेशन में भी मिल रहा है ना जाने को बाद में, just go. मतलब I am seeing you have left your job and everything and you have accompanied your husband Yeah. in this small station. Hats off to you. And you are a role model to all the फौजी ladies. Thank you so much. कि ऐसे ही होना चाहिए. मतलब ये मत सोचो कि बहुत छोटी जगह में वहाँ क्या करूँगी, खाने को कुछ नहीं है. अरे फौज आपको रोटी कपड़ा मकान सब दे रहा दे देती है. है ना. एंड आप अपने हस्बैंड के साथ हो तो वो, दैट इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट ब्लेसिंग आई वुड से. Yeah. एंड स्टे कनेक्टेड, है ना. टॉक टॉक टॉक, कम्युनिकेट विथ योर हस्बैंड, कम्युनिकेट विथ योर surrounding people. That is one suggestion from my side, because आजकल जो frequency of separations and all हो रही है, it is all because of lack of communication. People Yeah. are not communicating. Just Hmm. communicate, just speak your heart out, and bas life is like that. Hmm. It's very simple. Yeah. एंड थैंक यू सो मच मिसेस दिव्या कि आप आए और आपने इतने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करे, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे. थैंक यू सो मच अगेन. Thank you so much, Bhavna, for calling me. All the very best. थैंक Great job. थैंक यू सो मच.